पिछले हफ्ते जब लोकसभा में 3 तलाक बिल पर बहस चल रही थी, तमामी पार्टियों के लीडर्स ने अपनी अपनी राय 3 तलाक बिल को लेकर रखी। उसी दौरान एनसीपी की लीडर और एनसीपी सुप्रीमो की बेटी सुप्रिया सालू ने एक बेहतरीन तकरीर की, जिसमें उन्होंने 2 मुस्लिम महिलाओं का जिक्र किया कि वो मुंबई में पल्टन रोड पर, जहाँ पर हज हाउस है, सेंट्रल हज कमेटी का जो ऑफिस है, उसके पास उन्होंने 2 बुर्कापोश महिलाओं से, यानी 2 बुर्कापोश ख्वातीन से उन्होंने 3 तलाक के ऊपर बात की और उनकी राय लेने की कोशिश की कि 3 तलाक बिल पर उनका क्या कहना है और इस्लाम 3 तलाक बिल पर क्या कहता है। पहले मैं आपको सुनवाता हूँ सुप्रिया की स्पीच का वो अंश जिसमें वो इन 2 महिलाओं का जिक्र कर रही हैं। Where Hajj House है बिल्डिंग, वहाँ मैं उतरी गाड़ी से and I started walking the street. I met a girl with a burqa and she had 2 young girls and the husband walking together and they turned out to be from Aurangabad. They stopped, they even know Asad bhai, and they stopped and they told me, please, what are you doing on the road? I said, there is triple talaq debate. I wanted to know, you are the real stakeholders. I am not going to be the victim, you may be the victim, so what is your view on this? So he said, no, these are not issues, nobody should be criminalized. His wife immediately got into the and she said, Supriya देखो, ये मेरी दोनों डॉक्टर है लड़कियाँ, उनका भी राय है और मैं एक टीचर हूँ, मैं कभी मेरे शौहर को जेल नहीं भेजूंगी, सहन करूंगी लेकिन हस्बैंड को जेल नहीं भेजूंगी, मेरे बच्चों का बाप है। This is what she said to me. Not only that, you have to sentiment of women, it's reality. I can give you the name. I'm not giving you data which are fudged numbers. I will give you the name and mobile. Please call and find out what these women think. My feet are ground. I don't give database. I genuinely work for women empowerment. I'll give you another example. And another young lady called Kiran Kulkarni, she's a Maharashtrian Brahmin girl, walked up to me in a burqa and she started talking to me. And she started talking to me in Marathi. I said, "आप कहाँ के?" She said, "माझं नाव किरण कुलकर्णी. मी मराठी ब्राह्मण आहे, मुसलमान माणसाशी लग्न केलं." I said, "तुम्ही बुरखा घालता?" So I said, "आप बुरखा पहनती है?" She said, "हाँ, because I am very proud of what." And she is today, she has done MCom, she's done her PhD in political science. She lives in a place called Jalna. She told me that, Supriya, my humble request is, don't get involved in all this. Support, no religion teaches you bad, no religion in the world. It's people like us who misinterpret it and misuse it. That's the point I'm making. So why are we getting into these issues? That's exactly what she said to me. She said to me, my marriage was of love. This man has given her all the freedom in the world. She studied. She was only 19 when she married this man. She was an undergraduate. She graduated and did her PhD after getting married to this man. She lives in Ambad and today she teaches the Quran to people. Imagine a girl named Kiran Kulkarni today is Mrs. Chaus, who lives in Jalna in Ambad and Aurangabad and leads a life with parents. So this is what integration is about, and that's what woman is about. Woman is about. तो सुना आपने, सुप्रिया ने 2 महिलाओं का जिक्र किया। इनमें से एक महिला से हम आपको मिलवाते हैं, जिस महिला से उनकी मुलाकात बुर्का ओढ़े हुए हुई, और ये महिला जिससे इनकी मुलाकात हुई पहले गैर मुस्लिम थी और एक मुस्लिम व्यक्ति से लव मैरिज की और उसके बाद इस्लाम को बहुत बारीकी से पढ़ा और पूरी तरह से इस्लाम को अपनाया, जिसका अंदाज़ा आप इस वीडियो को देखने के बाद भी लगा सकते हैं कि पूरी तरह से ये औरत, ये खातून बुर्कापोश है, और न सिर्फ बुर्कापोश है बल्कि पूरी तरह से अपना चेहरा भी इन्होंने ढका हुआ है। और इस्लाम के बारे में जितना डीपली ये बात कर रही हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी तरह से इस्लाम के ऊपर इन्होंने रिसर्च की है, इस्लाम को बहुत ही बारीकी से पढ़ा है और जाना है। बहुत पढ़ी लिखी ये खातून हैं, MBA MA किए हुए हैं और PhD कर रही हैं। तो आइए हम मिलवाते हैं आपको हिना बिन माजी उर्फ ममता कुलकर्णी से, और इस वीडियो को हम तक पहुंचाया है, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे औरंगाबाद न्यूज़ का, जिन्होंने अपने पोर्टल पर इसको डाला है, अपने YouTube चैनल पर डाला है, और उनकी परमिशन के साथ हम इसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं।
सुप्रिया सुरे जी से मेरी बात जो है 2 दिन पहले हुई थी। हम बॉम्बे गए थे, शॉपिंग कर रहे थे हम क्रॉफर्ड मार्केट साइड में। तो हम पार्किंग में वापस आ रहे थे, तो वो वहाँ पर देख रही थी कि कोई मुझे मिलता है क्या। और चलो हमारा गुड लक अच्छा था, उनका गुड लक अच्छा था कि हम एक दूसरे से मिले। और फिर बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर आकर हमको बहुत ताज्जुब हुआ कि इतनी बड़ी एमपी, इतनी बड़ी लीडर बिल्कुल रास्ते पर आकर पूछ रही है हमसे कि आपकी क्या ट्रिपल तलाक के बारे में क्या राय है। फिर इस्लाम के बारे में भी काफ़ी कुछ नॉलेज लिया उन्होंने कि क्या है, शादी का सिस्टम कैसा है, क्या है, बहुत कुछ जानने की कोशिश की उन्होंने। मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बड़ी लीडर रास्ते पर आके इतना स्टडी करती है और इतना स्टडीअसली पार्लियामेंट में जाकर बोलेंगी। आई रियली अप्रिशिएट इट, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ मैं उनके ये एफर्ट्स को। क्यों, तो ये बहुत मामूली बात नहीं है, ये गैर मामूली बात है। पहले किरण कुलकर्णी था मेरा नाम, और मैं ट्रिपल तलाक के बारे में बोलूँगी जो बिल अभी पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है। तो ट्रिपल तलाक ये जो कंसेप्ट है ये इस्लाम में फ़र्स्ट ऑफ ऑल कुरान अगर आप पढ़ेंगे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी ट्रिपल तलाक एट वन टाइम आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में जो तलाक का तस्वूर है वो अल्लाह ताला ने बहुत प्यारे तरीक़े से बनाया है। यानी अगर देखा जाए तो ये रहमत है, क्योंकि अगर एक कपल रहना नहीं चाहते हैं तो उनको आज अगर हम देखेंगे कोई और कम्युनिटीज़ में तो सालों साल वो कोर्ट के चक्कर मार रहे, लेकिन उनके अंदर कोई यानी वो अपनी अपनी ज़िंदगी खींच रहे। तो इसमें इस्लाम में तो बहुत बेहतरीन तरीका है तलाक का। रही बात एक टाइम ट्रिपल तलाक देने की, तो ये इस्लाम से जायज़ ही नहीं है अगर इस्लाम की स्टडी करे तो। अब ये अलग बात है कि उसको जो है मीडिया ने अलग तरीके से फैलाई या लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है, क्योंकि उनको एक्चुअली इस्लाम का स्टडी नहीं है इस्लाम की। इस वजह से लोगों के अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शन है तलाक को लेकर कि एक ही बार में 3 बार तलाक 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 बोल दिए तो तलाक हो जाती है। जबकि अगर आप इस्लाम की स्टडी करेंगे, आप इस्लाम को जानेंगे तो आप देखेंगे कि वो 3 महीने का पीरियड होता है, उसके अंदर एक तलाक होती है, फिर दूसरी। यानी अगर शोहर बोलता है, अगर उसके बीच में दोनों के बीच संबंध अच्छे हो जाए तो वो तलाक नहीं माने जाती। और इस्लाम में सूरह बकरा आयत नंबर 228 to 248 अगर हम पढ़े, और सूरह तलाक नाम का एक सूरा है कुरान में, उसमें आयत नंबर 1 to 5 अगर पढ़े तो हमको तलाक का पूरा प्रोसीजर मालूम हो जाएगा। एक बेहतरीन यूनिफॉर्म सिस्टम में तलाक का यानी हर मसले का हल है। कुरान में क्या है, बहुत सारे लोग यानी लोगों को मालूम नहीं है। जो मुसलमान भी कुरान पढ़ते हैं, पढ़ना आता है उन्हें, लेकिन कुरान के अंदर है क्या? कुरान में ये है कि ज़िंदगी कैसे जी जाए, ज़िंदगी का ज़ाब्ता दिया हुआ है। मरने से, पैदा होने से लेकर तो मरने तक कैसे हमें जीना है, हमारे इकोनॉमिकल रिलेशन कैसा होना चाहिए, सोशल रिलेशन कैसा होना चाहिए, पॉलिटिकल रिलेशन होना कैसे चाहिए, आपस में मियाँ बीवी के रिलेशन कैसा होना चाहिए, ये सब उसमें डिस्कस किया गया हुआ है। कुरान में सूरह बकरा में आयत नंबर 187 में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिबास हो। यानी हस्बैंड और वाइफ को लिबास कहा गया है, यानी दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। कपड़ा क्या होता है, इंसान की बेसिक नीड्स क्या है? फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। सो अल्लाह हैज़ कंपेयर्ड मैरिज विथ द क्लोथिंग। सो क्लोथिंग क्या है? आपकी बेसिक नीड है। बेसिक नीड क्या करती है? आपको प्रोटेक्ट करती है हर बुरी चीज़ से, हाँ। और दूसरी चीज़ आपको खूबसूरती देती है, खूबसूरती देती है। तो ये रिश्ता क्या है? खूबसूरत भी बनाता है, आपको प्रोटेक्शन देता है। तो ये रिश्ते को अल्लाह ने कंपेयर किया है। और अगर हम ट्रिपल तलाक के नाम पर हमारे शोहर को अगर हम अंदर डालें तो ये रिश्ता कायम रहेगा या टूट फूट जाएगा, ये सोचने वाली बात है। और अगर कुछ लोग कहते हैं कि तलाक होने के बाद औरतों का क्या होगा, वो औरत के ऊपर क्या बीत, सही बात है, औरत को बहुत तकलीफ देने वाला मामला है। लेकिन अल्लाह ताला ने इसके अंदर भी कुरान में अगर आप देखेंगे तो काउंसलिंग रखा है। अल्लाह ने कहा है कि इसमें काउंसलिंग करो। एक जेंट्स साइड का कोई तो भी एक आए रिश्तेदार जो कि जिसको दीन का नॉलेज हो, जो अच्छा समझदार हो, और एक वाइफ की तरफ से आए, और दोनों आपस में बैठे सुलह करने की कोशिश करें। और सुलह नहीं होती है उसके बाद फिर आपको तलाक का ऑप्शन है। यानी ऐसा नहीं है कि उठाए और दे दिए तलाक और हो गया रिश्ता ख़त्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जो ये सवाल पूछते हैं कि औरत का क्या होगा, तो नंबर 1 जो हमारे पास
इस्लामिक लोगों के बारे में जो बोला जाता है कि नहीं, मुसलमानों के बीवियों पर बहुत अत्याचार होता है, उनकी औरतों को बहुत ज़्यादा यानी जुल्म वगैरह होता है, तो मैं बोलती हूँ जुल्म हर औरत पे हो रहा है, सिर्फ मुसलमान की औरत पर नहीं। हिंदू औरतें भी देख लें हम, डाउरी के नाम पर, डाउरी के ऊपर भी कानून बना है। 18 लड़की की एज 18 के ऊपर होना शादी करते वक्त। कितने बच्चों की एज आज 18 के ऊपर है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कितने भी हो। सिर्फ मुसलमान ही मत बोलिए, ऐसे बहुत सारे कानून बनते हैं सोशली, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है। तो एक्चुअली सोशल अवेयरनेस चाहिए, जैसा भी ये तलाक के मामले में भी क्या चाहिए, सोशल अवेयरनेस चाहिए, ना कि गवर्नमेंट का कोई लॉ हो, क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं कुरान में, तो आप लॉ बनाकर करेंगे क्या। और सिर्फ आपको क्या करना है, हमारे जेंट्स को लेके जाकर अंदर ठोसना है, और गवर्नमेंट लोगों का जो बोलना है कि नहीं भाई 3 तलाक देने के बाद औरत कहाँ जाएंगी, वो तो इसको इकोनॉमिकल यानी उसका क्या होगा। तो देखिए, पहली बात तो अगर जब उसकी शादी होती है लड़की की, तो उसको पूछा जाता है कि क्या ये तेरी मर्जी से है शादी, अगर वो मर्जी देती है तभी वो निकाह हो पाता है। सेकंड चीज़ उसका महर है, हमारे पास इस्लाम में महर लड़के वाले से लिया जाता है, ना कि दिया जाता। आप देखिए, हर एक की अपनी इकोनॉमिकल जो कंडीशन है उसके ऊपर वो महर डिपेंड करता है। से थर्ड चीज़, हर लड़की को, वो माँ हो, बहू हो या बेटी हो, उसको अपने शोहर के, अपने बाप के, अपने भाई के जो प्रॉपर्टी होती है उसमें उसका हिस्सा रखा गया है, तो वो प्रोटेक्टेड है वो इकोनॉमिकली, और उसको इल्म हासिल करने का हक भी दिया है अल्लाह ताला ने। हमारे प्यारे नबी ने कहा है कि हर मुसलमान मर्द और औरत को इल्म हासिल करना ज़रूरी है, मस्ट है। तो ऐसा कहीं औरतों के ऊपर जुल्म, और अगर उसका समझो अगर उसका तलाक हो भी गया तो उसको इस्लाम ने रीमैरिज करने का हक दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ। कल एक मैं डिबेट में थी, तो वो रिदा शेख जो थी, सिस्टर रिदा शेख, तो उन्होंने बोला कि आप कभी ग्राउंड लेवल पे जाकर देखो, तो मैं ग्राउंड लेवल पे ही काम करती हूँ, इस्लामिक दावत का काम करती हूँ। तो मुझे ऐसा कहीं दिखा नहीं कि हाँ हो सकती है कहीं कहीं अनबन, में नहीं बोलती नहीं, तो क्या ये दूसरी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम नहीं होता। आज आप एडल्ट्री देखिए, और उसके बाद जो शादी गैर शादीशुदा लोग जो एक साथ रहते हैं वो देखिए, तो वो सब जायज़ है। किसी ने किसी को अगर धक्का मारा तो 2 साल, यानी किसी के हाथ से कोई मर गया एक्सीडेंट में तो 2 साल की सज़ा, और अगर ये ट्रिपल तलाक दे तो 3 साल की सज़ा। यानी ये तो सब इनजस्टिस हो गया ना। यानी सिर्फ आप जेंट्स को अंदर लेकर जाना चाहते, और उसके बाद उसकी फैमिली का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा। अगर वो यहाँ बाहर है तो वो कम से कम अपनी फैमिली को कुछ, जो उसके बच्चे हैं तो वो बच्चों का खर्चा तो देगा ना, बिल्कुल देना है। और वो 3 महीने तक वो खर्चा देना है। इस्लाम में ये है कि बच्चे का खर्चे की जिम्मेदारी शोहर पे आएंगी। औरत चाहे तो शादी करे, और औरत के माँ बाप से सब तरफ से प्रोटेक्ट की गई है। और दूसरी चीज़ मैं खुद गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ कि अगर गवर्नमेंट कहती है कि ये जो औरत जिसको तलाक होता है वो फिर क्या करेंगी, ये परसेंटेज कितना है। जो मैंने डाटा मालूम की 23% या कुछ 15 to 23% के दरमियान है। तो क्या हमारी गवर्नमेंट ये लेडीज़ के लिए, ये डिप्रेस्ड क्लास जो लेडीज़ है जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, तो उनके साथ कुछ जस्टिस नहीं कर सकती है? उनके लिए कोई उनके पास स्कीम नहीं हो सकती है कि अगर ऐसी कोई लेडीज़ है, क्योंकि आप मुझे बोलिए जो लोग ऑलरेडी जो इकोनॉमिकली नीचे उनका लेवल बहुत कम है, तो वो क्या अपने बीवी को मदद करेंगे। वो खुद बेचारा खाने की उसकी परेशानियां हैं, तो अपनी बीवी को क्या बोल के कुछ दे पाएगा। तो मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करे, ना कि गवर्नमेंट एक शोहर को अंदर डाले। क्यों, तो मुझे ऐसा लगता है ये जुल्म है, सीधी सी बात है। और ये सिर्फ एक यानी एक सोसाइटी को स्प्लिट करने का मामला है कि ये सोसाइटी को स्प्लिट करो। दिस इज जस्ट अ गेम प्लान अगेंस्ट मुस्लिम सोसाइटी अकॉर्डिंग टू मी। और खुद इस्लाम एक इतना प्यारा मज़हब है, यूनिफॉर्म सिस्टम का मज़हब है जिसमें हर मसले का हल है। उसी को अगर मुसलमान इम्प्लीमेंट करे, ख़ास करके हमारे आलिम जो हमारे सोसाइटी के जो बड़े हैं वो अपने मज़हब को इम्प्लीमेंट करे प्रॉपरली, तो ये जो क्वेश्चन आज जा रहा है पार्लियामेंट में जा रहा है, क्यों जाना चाहिए क्वेश्चन? हम खुद क्या अपने लेवल पे इसको हल नहीं कर सकते? हमारी कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम अपने लेवल पे हल कर सकते हैं। तो हमें भी सोचना चाहिए कि जब हमारा कुरान हमारे पास है, अल्लाह ने इतनी बड़ी चीज़ दिया,
कि अगर ये पहाड़ पर उतरता तो पहाड़ भी रेजे रेजे हो जाते। तो हम इसको समझे और अपनी ज़िंदगी में लाएं, ना कि हम दूसरों के पास जाके अपने मसले लेकर दूसरों के पास जाए। उल्टा होना तो ऐसा चाहिए कि दूसरे आए हमारे पास अपने मसले लेकर, हो रहा तो उल्टा ही है।